So we will discuss nucleophilic substitution unimolecular, that is SN1 mechanism. Nucleophilic substitution reaction proceeds through two mechanisms. Number one is nucleophilic substitution bimolecular, that is SN2. In that particular mechanism, the rate of the reaction depends upon both the concentration of the haloalkane and the nucleophile, or we can say that the rate of the reaction depends upon both the alkyl halide and the nucleophile, and that mechanism is single step mechanism and leads to inversion of configuration. So what is now SN1? This SN1 mechanism, it is a two step mechanism. ये टू स्टेप मैकेनिज्म है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यहां पर जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप, दैट इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन by the cleavage of C-H bond, by the heterolytic cleavage of C-H bond. ये ब्रेक होता है यहाँ पर बॉन्ड, यानी heterolytic cleavage हो जाता है यहाँ पर, heterolytic fission हो जाता है यहाँ पर. So like this, so यहाँ पर जनरेशन होता है कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन का मतलब है it is a reactive species which bears positive charge on carbon. So this is alkyl halide. So we'll get C like this. This is carbocation plus halide ion यहाँ पर बनता है. So this is carbocation, हो गया formation of carbocation. So this is the first step here. Second step यहाँ पर जो है, second step, that is attack of nucleophile on carbocation. कार्बोकेटाइन पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का टू गिव द सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. उससे हमें फिर मिलता है सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लाइक दिस. दिस इज कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन है, इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा. सो वी विल गेट द सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, हमें मिलता है सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दैट इज द सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. सो इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म SN1. अब दिस SN1 मैकेनिज्म जो है, it is facilitated by, ये facilitate होता है by polar protic solvents, polar protic solvents. उनमें facilitate होता है like water और alcohol etc. So ये देखा गया है कि यहां पर जो रेट होती है, रेट डिपेंड्स अपॉन, यहां पर जो रेट, इस रिएक्शन की जो रेट होती है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द alkyl halide ओनली, यानी alkyl halide जो होता है, and not upon the nucleophile. So therefore the reaction which proceeds through SN1 mechanism follows first order kinetics. ये करती है follow first order kinetics, क्योंकि रेट डिपेंड करती है only upon the alkyl halide, not upon the nucleophile. यानी if you change the nucleophile, the rate will remain unchanged. But if you change the concentration of the alkyl halide, the rate will change. The rate of the reaction will change. Let's take an example. The reaction between tertiary butyl alcohol, this is tertiary butyl bromide, the reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion proceeds through SN1. ये proceed करते हैं through SN1. That means it follows first order kinetics. We get tertiary butyl alcohol and the halide ion. In the reaction between tertiary butyl bromide and alcohol
and hydroxide ion gives tertiary butyl alcohol and bromide. So this reaction proceeds, it follows first order kinetics, or we can say that it proceeds through SN1 mechanism. यहाँ पर बनता है, पहले हो जाता है यहाँ पर जनरेट का होता है यहाँ पर कार्बोकेटाइन पहले स्टेप में, दैट इज ऐसे बनता है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन होता है जनरेट इन फर्स्ट स्टेप, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। फिर इसी को करता है न्यूक्लियोफाइल अटैक दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल करता है इसको अटैक कार्बोकेटाइन को, एंड वी गेट द सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट, फिर हमें मिलता है सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो स्टेप 1 होता है, आउट ऑफ द 2 स्टेप, जो स्टेप 1 है दैट इज अ सिलो स्टेप एंड इज रेट डिटरमाइनिंग। वो सिलो स्टेप भी है और रेट डिटरमाइनिंग भी है। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो है ना, सिलो स्टेप जो है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग, और रेट डिटरमाइनिंग होता है वो। इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल भी है, ये रिवर्सिबल स्टेप भी है, स्टेप फर्स्ट। अब जो ये स्टेप फर्स्ट है ना, इट एक्चुअली हमने देखा कि इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ C-H बॉन्ड, ये इन्वॉल्व करता है क्लीवेज ऑफ C-H बॉन्ड। So the energy required for that bond breakage is obtained through the solvation of halide ion with the proton of the protic solvent. अब यहां पर greater the stability of the carbocation, जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, greater will be its ease of formation and faster will be the rate of the reaction. अगर हम लेंगे इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स, मतलब इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर थ्रू SN1, यानी द टेंडेंसी टू शो SN1 मैकेनिज्म, द ऑर्डर इज टर्शियरी इज ग्रेटर, उसका जो रिएक्टिविटी SN1 रिएक्टिविटी है दैट इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, फिर प्राइमरी का। तो सबसे कम है प्राइमरी का, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू द टर्शियरी कार्बोकेटाइन that is more stable as compared to the primary one. But if we take the example of the primary allylic halide or primary benzylic halide, जो ये वाले हैं, their tendency towards SN1 reactivity is more as compared to the primary haloalkane. Why so? Because जो यहाँ पर जो allylic carbocation या benzylic carbocation that is stable, that is stabilized, वो stabilize होता है due to resonance, वो stabilize होता है due to resonance, जो possible नहीं है primary alkyl halide में. For example, I will take an example. This is CH2 double bond CH single bond CH2Br. This is allylic bromide. ये allylic bromide है. अब यहाँ अगर हम इसको बनाएंगे कार्बोकेटाइन बनेगा, इसको CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटाइन प्लस Br नेगेटिव, बन गया कार्बोकेटाइन यहाँ पर. दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड, ये स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस. इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटेड स्ट्रक्चर, ऐसे बनेगा. ये पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर करेंगे शिफ्ट, सो ये उससे ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगी और यहाँ पर डेवलप होगी पॉजिटिव चार्ज, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बनेगी पॉजिटिव चार्ज. अब इस तरह ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन, सो बिकॉज ऑफ दैट इट गेट्स स्टेबलाइज्ड दिस कार्बोकेटाइन. ऐसा ही केस है बेंजाइलिक का भी. सो अब हम कह सकते हैं कि बेंजाइलिक, प्राइमरी बेंजाइलिक या प्राइमरी एलाइलिक, they show greater tendency towards SN1 reactivity या SN1 mechanism. ये SN1 mechanism करते हैं prefer as compared to the primary haloalkane. So this was about SN1 mechanism. The main difference between SN1 mechanism and SN2 is, in SN2 the rate of the reaction depends upon both the alkyl halide and the
न्यूक्लियोफाइल, दैट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म. बट SN1 में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली अल्काइल हाइड्राइड, एंड इट इज ए टू स्टेप मैकेनिज्म. इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटाइन को टू गेट द सबस्ट्रेट प्रोडक्ट.